Hello friends, I am Renu and let's start general knowledge questions for class 7. Today's topic is about colorful language. The question says, fill in the right color to complete the sentences. Fill in the blanks have been given and we have to complete it with the name of color. The first one says, seeing my new jacket, she turned dash with envy. So here you have to fill green with envy. Which color you will fill? Green. And it means ईर्ष्यालु, ईर्ष्या से क्रोधित हो जाना. Green with envy. Understood? Now moving on to B part. My best friends cheered me up. Cheered मतलब खुश करना. Whenever I had the dash. So here we have to fill blues. You have to write the S word as well. If you write only blue, then it will be incorrect. You have to fill blues and here it means state of depression. जब हमको बहुत दुखी होते हैं तो हम डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं. For that one, blues word has been used. Moving on to C part. I remember the day I got selected. It was a dash letter day for me. Here, which word we have to fill? Red. Now, red letter day, it means important day. When something good happens to us. जिस दिन हमारे साथ बहुत अच्छा होता है, so उसके लिए हम क्या use करते हैं? Red letter day. Moving on to D part. She has been doing so well lately. She seems to have hit a dash patch. Now here, what does the sentence mean? वो बहुत अच्छा कर रही है कुछ दिनों से, तो उसने क्या हिट किया है? We have to fill the name purple. What do you fill? Purple. For D part I am saying. You have to fill purple. So purple patch mean, this is a phrase, right? It means good luck. तो अगर किसी को बहुत अच्छा दिन चल रहा है, good luck चल रहा है, so what we can say? That person has hit a purple patch. तो मतलब क्या है उसका? सक्सेसफुल हो रहा है, गुड लक चल रहा है उसका, अच्छे दिन आ गए हैं. मूविंग ऑन टू ई पार्ट. ही ऑलवेज गॉट इनटू ट्रबल एंड वाज कंसीडर्ड द डैश शिप ऑफ द फैमिली. वो हमेशा मुश्किल में पड़ जाता है. ट्रबल मीन्स मुश्किल में, और इसलिए उसको फैमिली का क्या माना जाता है? वी हैव टू फिल हियर वेट. ब्लैक शिप. वेट. BLACK. In E part, we have to fill black sheep of the family. That means Kul Kalank. Or you can say a person who is not a good for the family. जो हमारे फैमिली पे अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली. मूविंग ऑन टू F part. He appeared so healthy. His hospitalization came as a bolt. BLUE. What does this sentence mean? वो बहुत ही हेल्दी लगता था, लेकिन अचानक से जब उसका हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, तो वो एक बहुत ही निराशाजनक न्यूज़ थी. तो कोई ऐसी न्यूज़ जब हमको मिलती है जो अच्छी नहीं है, बिन बुलाए न्यूज़, उसको बोलते हैं ब्लू. फ्रॉम द ब्लू. Moving on to G part. Our garden looks wonderful these days. The new gardener really has dash fingers. Here you have to fill green fingers. Now let me tell you the meaning. उसका बगीचा बहुत ही अच्छा दिखता है आजकल. जो नया बागबान है, गार्डनर मतलब बागबान, जो बागवानी करता है. He really has green finger. Green finger का मतलब क्या आता है? Someone who is good at gardening. जो बहुत ही अच्छी बागबानी करता है, जिसके हाथ से पौधे लग जाते हैं, मुरझाते नहीं हैं, बड़े होने लगते हैं, तो उनको बोला जाता है कि उनके पास ग्रीन फिंगर है, कि उनके हाथ से आसानी से पौधे लग जाते हैं. मूविंग ऑन टू H part. Wait a minute. Okay. I lost my job, but I set up my own business. You see, every cloud has a dash lining. I'm sure you must have heard this phrase.
you will fill here silver. Silver lining. मैंने अपनी नौकरी खो दी, फिर मैंने बिजनेस खड़ा किया, तो इसका मतलब क्या है? एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, की जहाँ निराशा वहाँ आशा। कुछ भी खराब होता है तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ अच्छा होने की संभावना रहती है. देन वी से एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. मूविंग ऑन टू आई पार्ट. आई हैव गिवन अप जंक फूड. जंक फूड क्या होता है? जो फास्ट फूड होता है, जो आप बाहर खाते हो. आई हैव अ चीज़ बर्गर or pizza only once in a dash moon. Here you have to fill blue moon. What does blue moon phrase mean? It means something which comes very rarely. ब्लू मून एक्चुअली एक ऐसा मून होता है जो बहुत सालों के बाद दिखाई देता है, तो इसलिए यहाँ पर ये फ्रेज यूज़ हुआ है कि बहुत दिनों के बाद अगर आप कुछ काम करते हो, देन वी से ब्लू मून. मूविंग ऑन टू जे पार्ट. She had to shut down the restaurant as customers were very few and the business was in the. Here you will fill red. Now what does this mean? उसने अपना रेस्टोरेंट बंद कर दिया क्योंकि कस्टमर्स बहुत कम थे और बिजनेस जो था मंदी में चल रहा था. यहाँ पर रेड का मतलब क्या है? मंदी. नेक्स्ट वन, के पार्ट. मोस्ट प्रोजेक्ट्स टेक एजेस टू कंप्लीट बिकॉज ऑफ द डैश टेप इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. बहुत सारे प्रोजेक्ट को टाइम लगता है क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या है? वी हैव टू फिल हियर रेड टेप. हियर रेड टेप मीन्स स्ट्रिक्ट रूल्स. बहुत कड़े नियम जो होते हैं उसको बोलते हैं रेड टेप, राइट. एल पार्ट. यू कैन नेवर गेस द आउटकम ऑफ दिस थ्रिलिंग नॉवल. देर आर टू मेनी डैश हेरिंग्स as the mystery unfolds. What does this mean? थ्रिलिंग मतलब रोमांचकारी. तो इस नॉवल का आप आउटकम मतलब जो लास्ट में स्टोरी में क्या होगा वो आप नहीं गेस कर सकते हो, अपने आप नहीं अनुमान लगा सकते. क्यों? देर आर टू मैनी. यहाँ पर टू TOO का मतलब है बहुत सारे. तो देर आर टू मैनी रेड हेरिंग्स. क्या भरेंगे हम? रेड हेरिंग्स. Now what does this herring means? It means something which diverts the attention from main topic. जो आपका मेन टॉपिक है उससे अगर आप भटक जा रहे हो उसको बोलते हैं हम रेड हेरिंग. तो यहाँ पर आपकी नॉवल में इतने सारे सब टॉपिक है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं. जब रहस्य, मिस्ट्री मतलब रहस्य खुलता है, अनफोल्ड मतलब खुलता है, तो जब रहस्य खुलता है तो हमको ये पता चलता है उसमें इतने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक, जो अटेंशन मेन टॉपिक से हटा देते हैं. इसलिए नॉवल का जो आउटकम है वो हम नहीं अनुमान लगा पाते हैं अपने आप. ओके, आई होप यू हैड अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 1. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. जस्ट अ मिनट. ओके, राइट. टिक द करेक्ट ऑप्शन. 2 options have been given. You have to check out which one is correct. The puzzle is so easy. It's a dash. Piece of cake or pie in the sky. What you have to fill? We will fill piece of cake. किसी भी चीज़ को piece of cake बोलने का मतलब है कि वो बहुत आसान है. B part. If you are extremely nervous, your heart is dash. Nervous मतलब बेचैन. अगर आप बहुत बेचैन हो या आपको बहुत घबराहट हो रही है तो आपका हार्ट क्या होता है? Options are on the sleeve, in your mouth. For this one we will fill in your mouth. कि आपका दिल जो है मुंह में आ जाता है, हम बोलते हैं ना जब बहुत घबराहट होती है. नेक्स्ट पार्ट, C. A person who deceives other. Deceive मतलब किसी को धोखा देना. What do we call it? Pull their legs, pulls wool over their eyes. Here the right answer will be pulls वूल ओवर देयर आइज. क्या मतलब है? आंखों में धूल झोंकना. जो किसी को धोखा देता है इसका मतलब है वो दूसरों को आंखों में धूल झोंक रहा है. डी पार्ट. इफ़ यू टेक क्रेडिट फॉर समवंस आइडिया. क्रेडिट मतलब श्रेय. किसी के सोच के लिए अगर आप अपना श्रेय देते हो, यू डैश. स्टील हिज थंडर या स्टील द शो. वी विल फिल स्टील हिज थंडर. अगर हम किसी के
विचार को चुरा लेते हैं और उसको बोलते हैं कि हमने किया है, ये वाला हमारी सोच है, अपने आप को श्रेय देते हैं। इसका मतलब हमने दूसरे की चीज़ को चुरा लिया। स्टील हिज थंडर। ई पार्ट, व्हेन स्पोर्ट्स पर्सन रिटायर दे आर सेट टू डैश, हैंग अप देयर बूट या फिर थ्रो इन द टावल। आंसर विल बी हैंग अप देयर बूट्स। जब स्पोर्ट्स पर्सन रिटायर होते हैं तो हम कहते हैं कि उन्होंने खेलना छोड़ दिया है। दे हैव स्टॉप्ड प्लेइंग अ स्पोर्ट। वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं फ्रेज, हैंग अप देयर बूट्स। नेक्स्ट वन, एफ पार्ट, वेट अ मिनट, ओके। इफ यू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद समवन यू हैव नॉट मेट बिफोर, यू डैश। ऑप्शंस हैं ब्रेक द आइस और ब्रेक फ्रेश ग्राउंड। जब आप किसी से बातचीत करते हैं जिसको आप पहले नहीं मिले हो तो हम क्या कहते हैं? आंसर विल बी ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। मतलब किसी एक पर्सन ने पहले स्टार्ट किया, दैट पर्सन इज ब्रेकिंग द आइस। जी पार्ट, लुकिंग फॉर समथिंग इन द रॉन्ग प्लेस यू कुड बी डैश, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री और बीटिंग अबाउट द बुश। कहते हैं इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग इन द रॉन्ग प्लेस, आंसर विल बी बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, कि हम गलत जगह पर किसी चीज़ को खोज रहे हैं, उसके लिए फ्रेज यूज होता है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। एच पार्ट, वेट अ मिनट, ओके, इज इट विजिबल नाउ? आई होप सो, just a minute, right? A person, organization or country that is less powerful or dangerous than it appears to be said to be a dash, paper tiger या white elephant. Here you will feel paper tiger. See, tiger names it shows that वो बहुत ही शक्तिशाली है, बट पेपर टाइगर तो दैट मीन्स वो नहीं है, झूठ मूठ का टाइगर है वो, कहने का मतलब। तो यहाँ पर वही मतलब है, एक आदमी या कंपनी या कुछ देश है उसको, वो लेस पावरफुल है, लेस डेंजरस है, लेकिन वो ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही पावरफुल है, तो उसको हम बोलते हैं पेपर टाइगर। आई पार्ट, you deal with a problem when it becomes necessary, not before. In other words, you dash, cross a bridge when you come to it, or make hay while the sun shines. Here we will fill cross a bridge when you come to it. What does it mean? आप कभी भी किसी प्रॉब्लम को तभी सॉल्व करते हैं जब बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक वो ज़रूरी नहीं है आप सोचते हैं अरे ठीक है बाद में सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम है तो क्या हो गया। ऐसे ही उस चीज़ के लिए हम कौन सा फ्रेज़ यूज़ करते हैं? क्रॉस अ ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। आप किसी पुल पर जाते हो तो तभी क्रॉस करोगे ना, उसके पहले तो क्रॉस नहीं करते। इसलिए ये रिलेटेड है कि आप ब्रिज क्रॉस करते हो व्हेन यू कम टू इट, मतलब प्रॉब्लम तब सॉल्व करते हैं जब वो ज़रूरी है। वी विल फिल दिस फ्रेज, क्रॉस अ ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। देयर विल बी अनदर पार्ट ऑफ दिस लेसन। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।